ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پولیس تھانہ صدر قصور کے علاقے مشتاق کالونی میں راہ چلتی طالبات کے ساتھ فاحش حرکت کرنے والے کو عوام نے پکڑ کر بجلی کے کھمبے سے باندھ کر خوب درگت بنائی، ٹنڈ کر کے تھانہ صدر پولیس کے حوالے کر دیا۔ طالبات کو چھیڑنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی ہے، جبکہ دوسری طرف متاثرہ نوجوان کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایس ایچ او تھانہ صدر کے مطابق فاحش حرکت کرنے والوں کے خلاف جیسے ہی درخواست موصول ہو گئی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ وزیراعظم عمران خان کا دورہ میلسی تیاریاں عروج پر، ورکرز کنونشن میں پی ٹی آئی کے عہدیداروں شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ مزید جانتے ہیں شیخ کامران زین سے۔ جی شیخ کامران، آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ، میں آپ کو بتاتا چلوں میں میلسی کے نواحی علاقے درپر پر موجود ہوں۔ یہاں پر ورکر کنونشن کی ترکیب جاری ہے، اسی حوالے سے ہمارے ساتھ عہدیدار موجود ہیں، ایم این اے اورنگزیب خان صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سر، کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن کے حوالے سے جو یہاں پر بھائی علی رضا خان صاحب نے اور حیدر خان صاحب نے اپنے سیکریٹریٹ میں جو عمران خان صاحب کے جو 6 مارچ کو یہاں پر جلسہ ہے اس کے سلسلے میں دوستوں کو اکٹھا کیا ہے، ورکرز کو اکٹھا کیا ہے، ان میں ایک بہت زبردست جذبہ نظر آ رہا ہے۔ تو ان کی اس کاوش کو، ان کی اس کوشش کو جتنا بھی سراہا جائے کم ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے ایم این اے اورنگزیب خان صاحب کی گفتگو سنی، اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بھابا صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سر، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آج کا جو یہ جلسے کا اہتمام کیا ہے علی رضا خان صاحب نے، وہ 6 مارچ میں وہ آ رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب تشریف لا رہے ہیں میلسی، ان کا جلسہ ہوگا۔ اس جلسے کی تیاری کے سلسلے میں ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے دوستوں کو یہی پیغام دینا ہے کہ 6 مارچ کو زیادہ سے زیادہ تشریف لائیں، اور ہم یہ اپنے مخالفوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف آج بھی اتنے ہی مقبول ہے، عمران خان آج بھی اتنے بڑے لیڈر ہیں جو آج سے 22-20 سال جب جدوجہد شروع کی تھی۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے نور محمد خان صاحب کی گفتگو سنی، ان کا یہی کہنا ہے پی ٹی آئی جو ہے یہ مقبول ترین جماعت ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ایم پی صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سر، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کا؟ یہ آپ کا یہاں پر کیا مقصد ہے عوام کو اکٹھے کرنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، 6 مارچ کو جیسے ہمارے ایم این اے بھائی اورنگزیب خان کھچی صاحب نے بتایا ہے کہ ہمارے قائد پرائم منسٹر عمران خان صاحب یہاں میلسی میں تشریف لا رہے ہیں۔ ساؤتھ پنجاب میں جو انہوں نے اپنے اس کا یہاں پر جلسوں کا انعقاد کیا ہے، تو یہ ان کی ہمارے ایم این اے، ہمارے منسٹر جہانزیب خان صاحب، ہماری عوام، ہمارے دوست، ان لوگوں کے اوپر اعتماد کا اظہار ہے کہ وہ میلسی میں انہوں نے اپنا پہلا ساؤتھ پنجاب کا جلسہ رکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس جلسے کو پاکستان کا ون آف دا بگیسٹ جلسہ بنا کر دکھائیں گے انشاءاللہ۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے گفتگو سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان پی ٹی آئی جو ہے پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے، اور یہاں پر بہت شکریہ کامران، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بہاول نگر کے حیدر اسٹیڈیم میں فٹ بال ٹورنامنٹ کا فائنل میچ چشتیہ نے میدان مار لیا، مہمان خصوصی آصف خان تھے۔ مزید جانتے ہیں شہباز سرور سے۔ جی شہباز، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں بہاول نگر حیدر اسٹیڈیم، اور یہاں پر چشتیہ فیفا یو ایف ٹی فٹ بال کلب اور الفتح فٹ بال کلب کے درمیان یہاں پر میچ تھا، اور یہاں پر جو مہمان خصوصی جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ ان سے ہم جان لیتے ہیں کہ کون سی ٹیم جیتی ہے اور انہیں کیسا لگا یہاں پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے اہم بات تو اس میں یہ ہے کہ جو ایک بہترین اور صحت مند معاشرے کے لیے کھیل کا جیتنا ضروری ہے۔ آج میرے لحاظ سے تو کھیل جیتی ہے، اور ٹیموں میں چشتیہ نے کھیل اچھا پیش کیا تو وہ ونر قرار پائے بس۔ جی جیسا کہ آپ نے سنا، ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر 2 ٹیمیں کھیلی، اور ان کے درمیان جو جیتنے میں جو ٹیم ہے وہ چشتیہ کی ٹیم ہے، وہ بہت اچھا کھیلی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ایسے ہی یعنی کہ کامیاب چلتے رہیں گے۔ ہمارے پاس موجود ہے اس وقت ڈی ایس او یعنی آسمی صاحب، ان سے ہم جانتے ہیں کہ انہیں کیسا لگا۔ جی السلام علیکم۔ یہ چشتیہ اور بہاول نگر کی ٹیموں کے درمیان جو میچ کھیلا گیا ہے، اس میں چشتیہ نے بہت اچھا، ویسے تو دونوں ٹیموں نے بہت اچھا کھیلا ہے، لیکن چشتیہ ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے وہ اپنی ہمت سے وہ جیت لیا ہے یہ میچ۔ شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے سنا، ان کا کہنا تھا کہ چشتیہ اور بہاول نگر کے درمیان یہ میچ ہو رہا تھا، اور اس وقت جو ون جو ہے۔ بہت شکریہ شہباز، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ کے نو منتخب صدر سردار اکبر علی ڈوگر کو وکلا کی جانب سے مبارکباد دیے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں، ان کے ہمراہ موجود ہیں ہمارے رپورٹر عاظم بٹ سے۔ جی عاظم بٹ، آگاہ کیجیے گا۔ جی اس وقت ہم لاہور ہائی کورٹ میں موجود ہیں، اور ریکارڈ ووٹنگ کے بعد کامیاب ہونے والے
सदारती उम्मीदवार जो सरदार अकबर अली डोगर थे, इस वक्त हमारे साथ सदर के तौर पर मौजूद हैं। ये बड़ी भारी अक्सरियत से कामयाब हुए हैं। आसमा जंगीर ग्रुप के ये हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे। हम इनसे बात करते हैं सरदार अकबर अली डोगर साहब से कि कामयाब होने के बाद ये उन वकला को क्या पैगाम देना चाहते हैं जिन्होंने अपने कीमती वोट से इन्हें कामयाब करवाया। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं अपनी बार के हर एक रुकन का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने इस कदर प्यार किया, इस कदर मोहब्बत दी और अल्लाह के फजल और करम से भारी अक्सरियत से हम इलेक्शन जीते। तो पैगाम मेरा उनसे यही है कि हम आप में से हैं, आपके लिए हैं और आपके लिए यहाँ पे बैठे हैं। आपकी बात करेंगे, आपकी आवाज़ बनेंगे और आपकी खिदमत करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। सरदार अकबर अली डोगर साहब ने जिन वकला ने कामयाब करवाया उनके लिए पैगाम दिया है कि हम उनकी बात करेंगे और पूरी बार की बात करेंगे और जिन वकला ने वोट दिया है इनको या नहीं दिया है ये उनकी भी बात करेंगे। वकला की काज के लिए जो है अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे और बार और बेंच के बेहतरीन हालात व वाक़यात के लिए जो है ये अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे। बार और बेंच मजबूती तरीके से आगे मामला चल। जी आजिम भट्ट, आगाह करने का शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि एंटी करप्शन ईस्ट जोन के सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी के ऑफिस में कार्रवाई। असिस्टेंट डायरेक्टर फ़हीम मेमन की सरबराही में टीम ने रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। मजीद जानते हैं कराची से इमरान अली की रिपोर्ट में। एंटी करप्शन ईस्ट जोन के सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी के ऑफिस पर बड़ी कार्रवाई असिस्टेंट डायरेक्टर ईस्ट जोन फ़हीम मेमन की सरबराही में 20 रुकनी टीम की जानिब से की गई। टीम ने मतलूबा रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। कार्रवाई रिश्वत सतानी और गैर कानूनी तौर पर रिहायशी और एम्यूनिटी प्लॉटों को कमर्शियल में तब्दील करने की अवामी शिकायत पर की गई। टीम 2 घंटे तक मास्टर प्लान डिपार्टमेंट में मौजूद रही। रिकॉर्ड लेने के अलावा अफसरान के बयानात भी कलमबंद किए गए। असिस्टेंट डायरेक्टर ईस्ट जोन फ़हीम मेमन का कहना था कि MPDA अफसरान को कई बार रिकॉर्ड फराहमी करने के लिए खतूत लिखे लेकिन जवाब नहीं दिया गया। 17 फरवरी को भी टीम ने मास्टर प्लान डिपार्टमेंट पर कार्रवाई की थी और कुछ रिकॉर्ड मिला था। MPD अफसरान को पाबंद किया गया था लेकिन फिर भी मतलूबा रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। MPD अफसरान मतलूबा रिकॉर्ड गायब करने में भी मुलव्विस हैं। करप्शन के ठोस सबूत मौजूद हैं। जल्द ही रिपोर्ट आपने जानी। अब आपको बताएं कि सऊदी अरब में हायर एजुकेशन के हवाले से तकरीब। सऊदी और पाकिस्तानी बच्चों समेत असातिज़ा ने कसीर तादाद में शिरकत की। मलेशिया के कायम मुकाम सफ़ीर ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की और कहा कि अगर दुनिया भर का मुकाबला करना है तो तालीम के मैदान में आगे बढ़ना होगा। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में TJS स्टडी स्टेप्स के ज़ेरे एहतमाम तकरीब का मकसद पाकिस्तानी बच्चों को हायर एजुकेशन के हसूल के लिए आगाही देना था, जिसमें उन्हें बताया गया कि मेडिसिन, इंजीनियरिंग, आर्ट एंड डिज़ाइन, IT, बिजनेस और मैनेजमेंट के कोर्सेज और पोस्ट ग्रेजुएट के जरिए तलबा अपने मुस्तकबिल ताबनाक बना सकते हैं। मलेशिया के कायम मकाम सफ़ीर अमीरुल हसनी सहर ने कहा कि मलेशिया ने अपने तालीमी निज़ाम को आलमी मयार के मुताबिक बनाया है और अगर दुनिया भर का मुकाबला करना है तो हर मुल्क को तालीम के शोबे को मजबूत बनाना होगा और तुलबा को ऐसा माहौल फराहम करना होगा जिससे उनका मुस्तकबिल ताबनाक हो सके। तकरीब के ऑर्गेनाइज़र इब्रार शेख, नाफे हुसैन और वक्कार नसीम का कहना था कि हमारा मकसद सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी बच्चों की रहनुमाई करना था ताकि वो किसी तालीम मैदान में आगे बढ़ सकें। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि कराची में डिप्टी कमिश्नर मलीर के अहकामात पर कार्रवाई, सरकारी अराजी वागुजार। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मलीर का कहना था कि कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। मजीद जानते हैं राजा बलोच की रिपोर्ट में। के अहकामात पर रेवेन्यू और एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस ने सरकारी जमीन पर कब्जागिरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन वागुजार करा ली है। रेवेन्यू अमले, एंटी इंक्रोचमेंट और मकामी पुलिस ने असिस्टेंट कमिश्नर बिन कासम और मुख्तियार कार की सरबराही में मोरन गोट के करीब 50 एकड़ सरकारी जमीन पर काबजीन के खिलाफ कार्रवाई करके मुतअद्दिद झोंपड़ियां गिरा दी हैं, जबकि कब्जागिर के एक कारिंदे अब्दुल कादिर को गिरफ्तार कर लिया है। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर मलीर गंवर अली लगारी ने राब्ता करने पर बताया कि सरकारी जमीनों पर काबजीन के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं।
और आज बिनकासम में मोरन गोट की आड़ में सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था, जिसको वागुजार कराया है। इन्होंने कहा कि लैंड माफिया सरकारी जमीनों पर कब्जा करके गरीब और नादार अवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, लेकिन अवाम को भी चाहिए कि सरकारी जमीनों पर काबिज माफिया से प्लाट लेने से गुरेज करे। डीसी मलिर का मजीद कहना था कि लैंड माफियाज के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और सरकारी जमीनों को वागुजार करवाया जाएगा, जबकि लैंड माफिया अगरचा इस काम में रुकावट डालेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन मुमताज के साथ राजा बलोच, कोहिनूर। मीरपुर माथेलो के नवाही थाना जरवार की हुदूद में बदअमनी अरूज पर पहुंच गई। गड़ी चाकर में खलील मेरानी के घर से डाकू जेवरात, मोटरसाइकिल और लाखों रुपए का दीगर सामान चोरी करके ले गए। मुलजिम मोटरसाइकिल कुछ फासले पर फसलों में फेंक गए। थाना जरवार की हुदूद में एक हफ्ते के दौरान 7 वारदातें हो चुकी हैं। आपको ये बता रहे हैं कि चोरी की वारदात हुई है मीरपुर माथेलों के नवाही थाना जरवार की हुदूद में। ओकाड़ा में इंसदादियो पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर किया। सीईओ हेल्थ डॉक्टर अब्दुल मजीद, एमएस डॉक्टर मुबशर गिलानी समेत डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने भी शिरकत की। सीईओ हेल्थ डॉक्टर अब्दुल मजीद ने इंसदादियो पोलियो मुहिम के हवाले से किए गए इकदामात से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अली एजाज का कहना था कि पोलियो का खात्मा हमारे मुआशरे के लिए एक चैलेंज है और हमने पोलियो को ख़त्म करके दम लेना है। बच्चों को इस मोहलिक मर्ज से बचाने के लिए महकमा सेहत और दीगर मुतल्लिका इदारों ने जिस तरह इकदामात किए हैं वो लायके तहसीन है। महकमा सेहत के डॉक्टर्स, ऑफिसर्स और फील्ड अमला इसी लगन, मेहनत और जाफिशानी से इंसदादियो पोलियो इकदामात जारी रखें। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन के एलाइड्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि लैंड माफिया ने सेक्टर 31C पर कब्जा कर लिया है। देखते हैं राजा बलोच की रिपोर्ट। शाह लतीफ टाउन के अलाटीज ने लैंड माफिया, एमडीए अफसरान व पुलिस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि लैंड माफिया ने सेक्टर 31C में डेरा जमा दिया है, जिनको एमडीए अफसरान व पुलिस की सरपरस्ती हासिल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हबीब राजपत, रशीद सदायो, हुब्दार अली, यासीन पंजाबी, जावेद खान। शाहकोट में चोरी और डकैती की वारदातें मामूल बन गई। नवाही इलाके में नामालूम डाकू मलिक लतीफ नामी पोस्टमैन से 25 लाख रुपए की रकम छीनकर फरार हो गए। मज़ाहमत पर डाकू ने पोस्टमैन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। कराची में मगसी बरादरी इत्तेहाद के हवाले से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें मगसी कौम के मुअज़्ज़िज़ीन के साथ मगसी कौम के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। देखिए कराची से हमारे नुमाइंदे अनवार मगसी की रिपोर्ट। तफसीलात के मुताबिक मगसी वर्किंग कमेटी की जानिब से कराची के इलाके रज़ाकाबाद, थुअर पावर गोठ में एक अजीम व आलीशान प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें मगसी कौम के मुअज़्ज़िज़ीन के साथ मगसी कौम के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मगसी कौम के मुअज़्ज़िज़ीन जमालुद्दीन मगसी, एडवोकेट मोहम्मद हनीफ मगसी, कुर्बान मगसी और अब्दुल हलीम मगसी ने खिताब करते हुए कहा कि हमारे कौम को कराची के अंदर बहुत ही मसले, मसाइल और तालीम, सेहत के हवाले से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमें इस वक्त कराची के अंदर मगसी कौम को मुत्तहिद करना चाह रहे हैं। और मज़ीद मगसी वर्किंग कमेटी के मुअज़्ज़िज़ीन ने कहा कि हम अपने कौम के लिए जो भी हो सकता है करेंगे। अनवर मगसी, कोहिनूर न्यूज़, कराची। सवात के हाजी बाबा स्कूल में होने वाले खुदकुश धमाके को 15 साल मुकम्मल हो गए। धमाके के नतीजे में सहाफ़ी इब्रार हुसैन के वालिद हाजी गुलाम हुसैन ने भी जामे शहादत नोश किया था। धमाका उस वक्त हुआ जब शहीद डीएसपी जावेद इकबाल की नमाज जनाजा हाजी बाबा स्कूल मैंगोरा में अदा की जा रही थी। इस धमाके में 56 अफराद शहीद हुए थे, जिनमें हाजी गुलाम हुसैन भी शामिल थे। शहीद गुलाम हुसैन के सोगवारान में उनके 3 बेटे सहाफ़ी इब्रार हुसैन, मुराद इलियास जबकि एक बेटी शामिल हैं।
पेशावर प्रेस क्लब की तारीख की सबसे बड़ी तकरीब हलफ बर्दारी वज़ीर आला हाउस में मुनक्किद की गई, जिसमें सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। देखिए इश्तियाक नूर चमकनी की रिपोर्ट। पेशावर प्रेस क्लब की तारीख की सबसे बड़ी तकरीब खलबरदारी प्रेस क्लब के मुत्तहिदा काबीना की खलबरदारी की तकरीब से बहैसियत मेहमान खुसूसी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने खिताब करते हुए कहा, ये वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्क की मईशत के साथ साथ खारजा पॉलिसी में भी नुमाया बेहतरी आई है। बैनुल-अक़वामी बिरादरी अब हम पर इत्मीनान करने लगी। वज़ीर आज़म का हालिया दौरा रूस इंतहाई कामयाब रहा और आने वाले दिनों में इसके मुस्बत असरात सामने आई है। अपनी हुकूमत की कारकर्दगी का तज़किरा करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि रवां साल बजट में आवाम से जो वादा किया था उन्हें एक एक करके पूरा कर रहा है। सूबे की तारीख में पहली बार 100% तरक्याती बजट माली साल के पहले ही दिन जारी कर देगा। इसके अलावा साबिका फाटा के मुलाजिमीन की मुस्तकिली से मुतालिक जो वादा किया था वो भी पूरा कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत के इक़दामात का जिक्र करते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत ने साल 2021 के दौरान मुख्तलिफ प्रेस क्लबों में ग्रांट ऑन एड की मद में 5 करोड़ रुपये फराहम किए, जबकि रवा माली साल डिवीज़नल सतह पर प्रेस क्लबों की तामीर व बहाली के लिए तकरीबन 10 करोड़ रुपये मंजूर किए। इसके अलावा जमशुदा अजला ने प्रेस क्लबों की तामीर और बहाली के लिए तकरीबन 12 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी मस्बत तनकीद के जरिए हुकूमत की गलतियों और कमजोरियों की निशानदही करे। इस मौके पर वज़ीर आला ने पेशावर के कारकुन सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने के लिए जर्नलिस्ट वेलफेयर एंडोमेंट फंड की रकम को 12 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये करना और पेशावर प्रेस क्लब को 3 करोड़ रुपये वन टाइम खुसूसी ग्रांट देने का ऐलान किया। इसके अलावा वज़ीर आला ने पेशावर के वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए जामिया पेशावर के शब सहाबत व अब्लाग आमा में मरहूम सहाफ़िया हफीजुल्लाह सनाउल्लाह और रहीमुल्लाह यूसुफज़ई के नाम से स्कॉलरशिप देने और पेशावर प्रेस क्लब की सोलराइजेशन के लिए आइंदा साल तरक्याती पर। डिचकोट में पिज़्ज़ा डिलीवर करने की जल्दबाजी ने नौजवान की जान ले ली। पिज़्ज़ा पॉइंट पर काम करने वाला नौजवान मोहम्मद अरीब तेज़ रफ्तारी के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराया और जख्मियों की ताब ना हिलाते हुए मौके पर ही जाँ बहक हो गया। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। डिचकोट में पिज़्ज़ा डिलीवर करने की जल्दबाजी ने नौजवान की जान ले ली। पिज़्ज़ा पॉइंट पर काम करने वाला नौजवान मोहम्मद अरीब तेज़ रफ्तारी के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गया और जख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पर ही जाँ बहक हो गया। सरगोदा यूनिवर्सिटी में सिट्रस फलों की नुमाइश में भी शाइन ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अपना एजाज बरकरार रखा। गैर मुल्की सफ़ीरों और वज़रा ने कंपनी के आला मयार और खिदमात की तारीफ की। मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च सैयद फ़खर इमाम थे। आपको बताएं कि पंजाब एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से सरगोदा यूनिवर्सिटी में सिट्रस फलों की नुमाइश हुई, जिसमें मुल्क भर के किसानों ने हिस्सा लिया। शाहीन ग्रुप ऑफ कंपनीज के इदारे शाहीन एग्रो प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से नुमाइश में 12 स्टॉल्स लगाए गए। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मलिक शेर खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गैर मुल्की सफ़ीरों और आला अफसरान ने हमारी तरफ से लगाए गए स्टॉल्स पर मुख्तलिफ इकसाम के सिट्रस फलों के मयार को सराहा है और नमूना जात भी हासिल किए, जो कि हमारी कामयाबी का मजहर हैं। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के प्रेसिडेंट और फलाही और समाजी कारकुन इब्राहिम भट्ट ने कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हुकूमत अपने दिन पूरे कर चुकी है। मुस्लिम लीग के दीवार से लगाने के लिए लीगी क़यादत हर झूठे केस बना रही है। देखते हैं रावलपिंडी से ज़ैनब अब्बासी की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून के यूथ विंग के प्रेसिडेंट और समाजी और फलाई कारकुन इब्राहिम भट्ट ने KN से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत का असल चेहरा अवाम के सामने आ चुका है और अब के इंतखाबात में अवाम नवाज शरीफ पर एतमाद करके नून लीग को भारी मैंडेट से हुकूमत में लेकर आएगी। उनका मजीद कहना था कि जी बिल्कुल ऐसा है कि जब हमारी हुकूमत थी तो यहाँ पे हमारी वार्ड में स्कूल था, उसे अपग्रेड किया गया और उसके बाद यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर बनाया गया। जो आवाम के मसाइल थे, यहाँ ज़्यादा मसाइल पानी के और गैस के, उस हवाले से मैं तो अपनी तय कोशिश करता हूँ और ये जो मौजूदा हुकूमत है इनके लोगों से भी तामुन करता हूँ। किसी उनके मतलब कोई तरक्याती काम में रुकावट बनने की कोशिश नहीं करता। मैं सियासत से ज़्यादा समाजी काम करने को, फलाई काम, लोगों के काम करने को, जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें इल्म है कि मैं सियासत से ज़्यादा, वोट मांगने से ज़्यादा लोगों के साथ हेल्प करने को
प्रेफर करता हूँ। यहाँ पर जो गैंग रेप एक बड़ा फेमस केस था, उसके अलावा भी काफ़ी मसाइल हैं। उसमें तो सुलह कर ली उसके फादर ने, ऐसे कामों में सुलह नहीं, कोई ना कोई निशान इबरत बनता तो लोगों के लिए होता, क्योंकि अव्वल तो ऐसे केसेस में लोग सामने ही नहीं आते। देखिए, जमात की सदारत तो उन्होंने मियाँ साहब ने शहबाज साहब के हैंड ओवर कर दी है, और मियाँ साहब का इनिशिएटिव जो भी समझे वो सिर्फ आवाम की बात करते हैं। आवाम के मतलब जो मसाइल हैं उनको बेहतर अंदाज में हम समझते हैं। हमारे पास टीम है जो इस मुल्क को मुश्किलात से निकाल सकती है। हमारे पास एक ऐसी टीम है जो इस मुल्क को दोबारा से अल्हम्दुलिल्लाह अपने पांव पर खड़ा कर सकती है। और मौजूदा हुकूमत ने तो जो लोगों के साथ झूठे वादे किए, मफरूज़ों पर मबनी केसेस थे, आज दोबारा वही अदालतें कह रही हैं कि नहीं ये बिल्कुल ठीक था, ये ठीक था, कैलेबरी फंड के हवाले से था। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि महकमा लाइफ स्टॉक की गफलत और लापरवाही शाहजीना में वेटनरी अस्पताल की इमारत खस्ता हाली का शिकार है। मजीद जानते हैं मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट में। महकमा लाइफ स्टॉक की गफलत शाहजीना के वेटनरी अमला को मरने के लिए छोड़ दिया। अस्पताल की इमारत किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। इमारत की तमीर पाकिस्तान बनने के फौरन बाद की गई थी। बाद में किसी भी हुकूमत ने मुरम्मत करवाने की जरूरत नहीं समझी। लोगों का कहना है कि हुकूमत इसको फौरी मुरम्मत करवाए। इनका कहना है कि अगर इसकी तमीर और मुरम्मत का काम न करवाया गया तो किसी भी वक्त किसी बड़े अफसोसनाक हादसे का सबब बन सकती है और कीमती जानों का ज़िया हो सकता है। वेटनरी अस्पताल के अमले ने कोई नूर न्यूज से बात करते हुए कहा, खालिद महमूद वेटनरी अस्पताल शाहजीना बिल्डिंग इंतहाई खतरनाक है जी। तकरीबन पाकिस्तान जब बना था उस वक्त इसकी तमीर हुई थी, बाद में किसी ने रिपेयर नहीं की। पहले ह्यूमन डिस्पेंसरी थी, बाद में वेटनरी अस्पताल शाहजीना में मुंतकिल हो गई। हमने पहले ही अफसरान बाला से मुतल्लिका महकमा से अर्ज की थी, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं दी। हमारी इल्तिजा है कि इसको दोबारा बनवाई जाए ताकि यहाँ हम दिन रात बैठने पर मजबूर हैं। यहाँ बड़ी दूर दूर से पुराना अस्पताल है, बड़ी दूर दूर से लोग मुस्तफीद होते हैं और हमारे से इलाज वगैरह के सिलसिले में हमारे पास आते हैं। बिल्डिंग न होने की वजह से हम बाहर बैठने पर मजबूर हैं। अद्वियात भी न होने के बराबर। लकी मरवत की तहसील सराय नौरंग के नौ मुंतखब चेयरमैन अजीजुल्लाह खान ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल नौरंग का दौरा किया, मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया, मरीजों से खैरियत दरियाफ्त की। मजीद जानते हैं शरीफुल्लाह खान की रिपोर्ट में। सवात ख्वाजाखेला में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। वर्कर कन्वेंशन से जिले सदर क़ीमुस खान, MPA PK3 सरदार खान, उम्मीदवार तहसील मेयर ख्वाजाखेला महबूबुर रहमान, साबिक मेंबर तहसील कौंसल हमीदुल्लाह खान खटक, सिराज खान, मोहम्मद रिशा और दूसरे मुकर्रिरीन ने खिताब किया। तकरीब से जिले सदर क़ीमुस खान ने खिताब करते हुए कहा कि हम सब एक है और इंशाअल्लाह महबूबुर रहमान हमारा मुतफ़िका उम्मीदवार है और इंशाअल्लाह जीत शेर की होगी, मुस्लिम लीग नून की होगी। तकरीब से MPA सरदार खान ने खिताब करते हुए मौजूदा हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मौजूदा हुकूमत ने गरीब आवाम से एक वक्त की रोटी भी छीन ली है। मुल्क में इस वक्त कयामत खेज महंगाई जारी है। इंशाअल्लाह बल्दियाती इलेक्शन में PTI को। सवात ख्वाजाखेला में मुस्लिम लीग नून का वर्कर कन्वेंशन, हजारों अफराद ने शिरकत की। उम्मीदवार तहसील मेयर महबूबुर रहमान ने खिताब किया। मजीद जानते हैं अमजद खान शाह की रिपोर्ट में। आपको बताएं कि हरिपुर में कड़लाल वेलफेयर एसोसिएशन ने जनरल बॉडी पर अदम एतमाद किया इजहार कर दिया। सदर सरदार मुसन्निफ ने नाकामी का एतराफ करते हुए माफी मांग ली। मजीद जानते हैं राशिद महमूद की रिपोर्ट में। के ज़ेरे एहतमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने किया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के गांव बोता पहुंचने पर बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। वहां पर मौजूद राजा असद इकबाल, रहनुमा PTI, खान सुल्तान महमूद खान, साबका उम्मीदवार MNA चौधरी मोहम्मद इलियास राय आलमगीर, MPA मियाँ अख्तर हयात, शाहिद मराला, नासिर अहमद शप्पर, ज़ुबैर टांडा, राशिद बद्दर और ज़िला इंतज़ामिया ने माला पहनाकर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया।
इस मौका पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने मौजूदा सियासी सूरत हाल, पार्टी अमूर, बिलखसूस जिला गुजरात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया और मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा, जो सरवर फाउंडेशन के इनिशिएटिव हैं उसके तहत माशाल्लाह अब 200 से ज़्यादा फिल्ट्रेशन प्लांट सरवर फाउंडेशन लगा चुकी है, जिससे तकरीबन 2.2 मिलियन लोगों को पीने का साफ पानी जो है डेली प्रोवाइड हो रहा है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे हम हमेशा फ़ख्र करते हैं कि मुल्क में जब भी ज़रूरत होती है तो हमारी ज़रूरत को पूरा करते हैं। और इस वक्त भी आप देख लें कि एक साल में उन्होंने $30 बिलियन ज़र मुबादला पाकिस्तान को भेजा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत जो है वो संभली है। तो मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि हमने अब नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुलाकात, चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल और IG पंजाब राव सरदार अली खान भी मौजूद थे। तफसीलात जानेंगे, टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे चीफ ब्यूरो चीफ लाहौर चौधरी शहबाज से। शहबाज, बताइएगा कि मुलाकात का हवाल। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। लाहौर पहुंचते ही वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। मुलाकात में सुबह की इंतजामी अमान और मजबूरी सूरत हाल से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला की तरफ से वज़ीर आज़म के सूबा के अंदर जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त बारे भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने सूबे में आम आदमी को फौरी और मौसर खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए भरपूर इक़दामात करने की हिदायत की और कहा कि अवाम के जानो माल और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शर पसंदों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और कब्ज़ा माफिया के खिलाफ मौसर इक़दामात करने की भी हिदायत की गई। जी शहबाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में मजीद ओहदेदारान के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। ज़ली सदर शेख इम्तियाज़ महमूद और जनरल सेक्रेटरी ज़ुबैर अहमद खान न्याजी ने तमाम फैसले मुशावरत से किए हैं और नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अवैस यूनुस को इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, फैसल खोखर को डेप्यूटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, हाफिज दिशान को डेप्यूटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, अकील अहमद को डेप्यूटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फाइनेंस के शोबे में तंजीला इमरान खान को फाइनेंस सेक्रेटरी और समीउल्लाह को डेप्यूटी फाइनेंस सेक्रेटरी बना दिया गया। गवर्नमेंट इदारों में ज़लई तंजीम की जानिब से फोकल पर्सन तैनात किए गए। चौधरी असगर गुज्जर को EWMC, राव जहीर इकबाल को सुई गैस, उमर महबूब को लेस्को, हक्कान मीर को पुलिस, अफीफ सिद्दीकी को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, वक्कास असलम को वासा, मोहम्मद असद कजाफी को PHA, उमर चीमा को LWA, सैयद अदनान जमील को हेल्थ, सैयद मुदस्सर सलीम को एजुकेशन, मियां मोहम्मद नईम को प्राइस कंट्रोल कमेटी, जाहिद अहमद खान को हायर एजुकेशन में फोकल पर्सन का नोटिफिकेशन जारी किया। शेख इम्तियाज़ महमूद सदर लाहौर और ज़ुबैर अहमद खान न्याजी जनरल सेक्रेटरी लाहौर ने लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए मुआवनत के लिए कमेटी का भी ऐलान किया। शबीर सयाल कन्वीनियर, आतिफ अयूब मियों को डेप्यूटी कन्वीनियर और राना तनवीर, सैयदा फातिमा हैदर, सादिया अयूब, तकी रजा खान को मेंबर कमेटी का नोटिफिकेशन जारी किया। पार्टी ने लाहौर तंजीम के लिए लीगल सेक्रेटरी के तौर पर मोहम्मद सिद्दीक चौधरी को भी नोटिफिकेशन जारी किया। इस मौके पर सदर लाहौर शेख इम्तियाज़ महमूद का कहना था कि इंशाल्लाह जल्द पार्टी की तंजीम को लाहौर में मुकम्मल करेंगे, लाहौर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किला बनाकर दम लेंगे। लाहौर में सूबाई वजीर हाउसिंग मलिक असद अली खोखर का वासा हेडक्वार्टर का दौरा। MD वासा मोहम्मद तनवीर ने तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफिंग दी। इसी बारे में डिटेल्स जानेंगे, हमारे साथ नुमाइंदा कामरान अली मौजूद हैं। कामरान अली, आगाह कीजिएगा। वजीर हाउसिंग मलिक असद अली खोखर ने वासा हेड ऑफिस का दौरा किया। MD वासा मोहम्मद तनवीर ने मिनिस्टर हाउसिंग मलिक असद अली खोखर का इस्तकबाल किया। सर्विस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और मानसून की तैयारियों के हवाले से मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी गई। सर्विस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से 100 क्यूसिक पानी BRB कैनाल से लेकर साफ किया जाएगा। 10 लाख से ज्यादा की आबादी इस मंसूबे से फायदा उठा सकेगी। इस मंसूबे से शादीपुरा, मुस्तफाबाद, फतेहगढ़, बागबानपुरा में साफ पीने का पानी पहुंचेगा। मिनिस्टर हाउसिंग ने काम की रफ्तार को तेज करने की हिदायत भी जारी की। सूबाई वजीर हाउसिंग मलिक असद अली खोखर ने मानसून की तैयारियों का भी जायजा लिया। मानसून से कबल जेर जमीन वाटर टैंक्स को फाल करने की हिदायत भी
जारी की गई। हंगामी बुनियादों पर मानसून से कबल डिसिल्टिंग ऑपरेशन मुकम्मल किया जाए। डिसिल्टिंग और अवामी शिकायत का अदाला में कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया कामरान अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हॉर्स एंड कैटल शो के इंतजामात के हवाले से कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का फोर्ट्रेस स्टेडियम का दौरा। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चट्ठा भी मौजूद थे। हॉर्स एंड कैटल शो के हवाले से बनाई गई कमेटियों की मुजव्वज़ा प्लान के बारे में कमिश्नर लाहौर को आगाह किया। कमिश्नर लाहौर ने मुख्तलिफ जगहों, नशिस्तगाहों और म्यूनसिपल इंतजामात का जायजा भी लिया। इस मौके पर कमिश्नर लाहौर का कहना था कि हॉर्स एंड कैटल शो इंतजामात के हवाले से रोजाना इजलास बुलाया जाएगा। तमाम महकमों का कैंप मुस्तकिल तौर पर कायम किया गया है। नेशनल एंड कैटल शो जश्न बहारा का सबसे बड़ा इवेंट है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 51वां इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी दे दी गई। सूबाई मशीरान, मुआविनीन ख़ुसूसी, चीफ सेक्रेटरी और मुतल्लिका हुकाम ने इजलास में शिरकत की। इस बारे में मज़ीद जानेंगे, रिपोर्टर शेख जाफिर हमारे साथ मौजूद हैं। शेख जाफिर, बताइएगा अहवाल। जी अहमद, सूबाई काबीना का 4 घंटे तवील इजलास वज़ीर आला की सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में तरमीम, जबकि सी पैक के तहत कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए सरकारी अराजी लीज पर देने और पंजाब सोलर बाजार अथॉरिटी एक्ट 2021 की मंजूरी दे दी गई, जिसके तहत महकमों के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के लिए कायदा ज़ाब्त में तरमीम, अदालती अहकामात की रोशनी में आवारा कुत्तों के लिए बर्थ कंट्रोल पॉलिसी, पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी एक्ट, पंजाब ड्रग रूल्स में तरमीम की मंजूरी देने के अलावा टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन के इदारों को एक ही प्लेटफॉर्म के एजुकेशन के इदारों के साथ तैयार करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की तश्कील नौ की मंजूरी भी दी गई। काबीना ने पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1976 में तरमीम की मंजूरी देते हुए इत्तेफाक राय से जनूबी पंजाब के लिए मुलाजिमतों में 32% कोटा मुख्तस करने की मंजूरी भी दी। इस तरह पंजाब प्राइवेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी के क्याम की मंजूरी भी सूबाई काबीना के इजलास में दी गई। रवा माली साल के लिए सूबे में कफायतशारी इकदामात, मुख्तलिफ पोस्टों को अपग्रेड करने की मंजूरी भी काबीना के फैसलों का हिस्सा है। जी बहुत शुक्रिया शेख जाफिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि बचपन की यादें और बेफिक्री के लम्हात बड़े अनमोल होते हैं। इन खूबसूरत यादों में दही इलाकों में खेले जाने वाला खेल कंचे आज भी मशहूर है। मजीद जानते हैं सादिकाबाद से मुनीर सोलंकी की रिपोर्ट में। सादिकाबाद के दही इलाकों में आज भी रवायती खेल कंचे खेलने के लिए खसूसी एहतमाम किया जाता है। कंचे के मैदान के अतराफ में 4 पहियों पर रंग बिरंगी रैलियां सजाई जाती हैं। गन्ने पेश किए जाते हैं, जहां खेल के साथ सकाफत के रंग भी नुमाया नजर आते हैं। बुजुर्ग, जवान और बच्चे सब इस खेल के शदाई हैं। मुझे बहुत मजा आया है और मैं जीत भी गया हूँ। इस जीत में मेरे बुजुर्गों ने मेरा बहुत साथ दिया है। रंग बिरंगे कंचे जब खिलखिलाते चेहरे वाले बच्चे खेलते हैं और ताक ताक कर निशाने लगाते हैं तो देखने वाले खूब महसूस होते हैं। गांव के बच्चे इस खेल को बहुत शौक से खेलते हैं। आज जब हमारे यहाँ कंचे खेल रहे थे बच्चे तो बहुत मजा आया और हमें बचपन याद आ गया। रिवायती खेल कंचे को देखने वाले बुजुर्ग भी इस खेल के दीवाने हैं। चाय की चुस्कियां लेते ये बुजुर्ग बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए कंचे खेलना शुरू कर देते हैं। मैं तेरे मुकाबला कर सकता वो नहीं कर सकता तो कंचे जी को आग देना साईं को अपनी ज़बान चीज़ां खेलूं बाल खेद देना सादा दिल खुश। महकमे औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब के ज़रिए तमाम दरबार हजरत शेर शाह वली के 557वीं सालाना उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात का इफ्तिताह रस्म चादर पोशी से कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से। सलमान शाह, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल अहमद, महकमे काबा मजीद पंजाब के जरिए तमाम दरबार हजरत शेर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के 597
सलाह से मुबारक की सैर रोजा तकरीबात का इफ्तिताह सेक्रेटरी व चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पंजाब जवाहर अकरम और डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पंजाब तजम्मुल अब्बास राणा ने बाद नमाज मगरिब रस्म चादर पोशी से किया। इस मौके पर जोनल एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ लाहौर गौर मुस्तफा, चेयरमैन अमूर मजहबिया कमेटी चौधरी अब्दुल वहीद और मैनेजर औकाफ मस्जिद वजीर खान उमर तौफीक भी साथ हमरा थे। महकमा औकाफ की जानिब से ज़ायरीन की सिक्योरिटी, लंगर और चारागाह के खुसूसी इंतजाम भी किए गए। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गढ़ा मोड़ में मुसाफिर बस और ऑयल टैंकर में खौफनाक तसादुम हुआ, जिसमें एक शख्स जान बहक और 10 अफराद शदीद जख्मी हो गए। 4 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। आपको बताएं कि हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद गढ़ा मोड़ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में 2 खवातीन भी शामिल हैं। नाज़रीन, टंडू अलायार में जुडिशियल मजिस्ट्रेट हाशिम की ज़ेरे निगरानी नसीर कैनाल के करीब कचरा कुंडी से बड़ी तादाद में मिलने वाला सामान को जला दिया गया। सरकारी प्रॉपर्टी को नजर आतिश करने का काम 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। आपको बताएं कि 1 हफ्ते के दौरान दीगर कोर्ट में मौजूद सरकारी प्रॉपर्टी को जस्टिस की निगरानी में जलाया जाएगा, जबकि जिला के दीगर थानों पर भी मौजूद दीगर मुकदमात में मिलने वाली सरकारी प्रॉपर्टी को भी जस्टिस की निगरानी में जलाया जाएगा। मियानी में पुलिस के जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। डीपीओ सरगोदा डॉक्टर रिजवान और भलवाल शहजाद अकबर के हुक्म पर इम्तियाज भाकट की कामयाब कार्रवाई। असलहा रिपेयरिंग की आड़ में नाजायज असलहा फरोख्त करने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बहावलपुर में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर खालिद महमूद आराई ने कहा है कि आवाम कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन लगवाकर जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। देखते हैं बहावलपुर से फजल जावेद खान की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर बहावलपुर डॉक्टर खालिद महमूद आराई ने कहा कि जिन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन नहीं कराई वो अपनी और अपने प्यारों की जिंदगी को महफूज बनाने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। 12 सालों से ज्यादा उम्र के 26,04,759 अफराद में से अब तक 23,63,000 से ज्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीनेशन की पहली डोज, जबकि 18,19,111 अफराद को कोरोना वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जिला भर में जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर खालिद महमूद रही, DHO PS डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर में बोल रहा हूँ। तो हमारा जो जैसे पूरे मुल्क में कोविड वैक्सीनेशन जारी है कोविड बीमारी के खिलाफ, तो हमारा जो बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट का टारगेट था टोटल वो 26,04,759 अफराद थे जो 12 साल से अबव थे। तो उनमें से जो हमने फर्स्ट डोज का 23,63,420 लोगों को लगा दिया है, यानी कि 91% लोगों को वैक्सीन एक टीका लग चुका है। और जो कंप्लीट हो चुकी है जिनको, वो 18,19,304 लोगों को हमने सेकंड डोज लगा दी है, यानी कि वो फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। तो अब हमारा टारगेट है कि हमने ये जो फुली वैक्सीनेटेड 70,000 है इसको 90,000 तक लेके जाना है, जिसके लिए हमारी टीमें। संजरपुर के गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में सिविल डिफेंस के हफ्तावार तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। देखिए हमारे नुमाइंदे जाम जमीर की रिपोर्ट। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल संजरपुर में पंजाब लाइब्रेरी प्रोजेक्ट इवेंट डे आलमी योम दिफा के हवाले से हफ्ता रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनकाद किया गया, जिसमें एलिमेंट्री और सेकेंडरी क्लास के तलबा ने भरपूर हिस्सा लिया। सिविल डिफेंस स्कूल फैसलाबाद से ट्रेंड सेशन वार्डन इंस्टर कटर कोर्स वजीर अहमद मार, तहसील सेक्रेटरी बहावलपुर टीचर एसोसिएशन ने तलबा और इस्ताजा को सिविल डिफेंस के ज़माने जंग और अमन और कुदरती आफात में होने वाले नुकसानात से बचाव के हवाले में पैदा होने वाली सूरत हाल पर काबू पाने के बारे में आगाह। सिविल डिफेंस के लिहाज से सिविल डिफेंस वो होती है कि नॉर्मल हालात हो, जंग के हालात हो, जंग के बाद के हमने अपने आप को महफूज करना है, इंसानी जिंदगी को ताकि नुकसान न पहुंचे। फर्स्ट एड का मतलब ये होता है कि किसी जगह पर किसी मौका पर जो पहली इमदाद दी जाए वो फर्स्ट एड कहलाती है। अब जंगी फिजाई जंग होती है तो उसमें पहले वार्निंग दी जाती है, पहले येलो वार्निंग होती है, इसके बाद हमला हो जाए तो रेड वार्निंग होती है, जहाज चले जाए तो व्हाइट मैसेज आता है, इसके बाद ग्रीन सिग्नल ग्रीन मैसेज आ जाता है किया। और इसके साथ ये भी कहा कि जख्मियों को बाहिफाजत रेस्क्यू करके अस्पताल ले जाने के लिए मुकामी आबादी के नौजवानों का।
اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.